everyone, my name is Premada and welcome back to World Student Scope. In this lecture, we will be talking about acid, bases and salts once again, but in this particular lecture, we are going to cover the family of salts and the pH of the salts, right? So let us now begin with our precious chapter. Yes. So as we are talking about the family of salts, let us first understand कि हम उसको कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, the salts that we are talking about, और how we are giving places to each and every salts and on what basis. Yes, so family of salts में बेटा सबसे पहले we are going to start with the activity 2.13. So let us begin with the procedure. Now the procedure of this activity says write the chemical formula of the salts given below. So as far as we know that salts का मतलब ये है, for example salts कोई भी solid substance है, right, and it can be a mixture of acids and bases as well. So अगर acids and bases मिलके कोई compound form करते हैं which is in a solid form, so we can say that it is a salt, right? So the salts are various salts which are given below here. Let's read out the name first. So potassium sulfate is the first salt. Next is sodium sulfate and calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate and ammonium chloride. Now you don't have to remember all these names because it is already given in your procedure. So whenever we are performing an activity, so we just have to follow the procedure. So till now we know that all these salts are given here for us to perform this particular activity in family of salts, right? Clear? Now the next step says or asks us to do is identify the acids and bases from which the above salts may be obtained, right? So बहुत ही simple चीज़ है कि whatever salts you have here in the activity, in the procedure part, so हमने basically क्या करना है, we have to take each and every salt and we have to determine कि उन सॉल्ट को बनाने के लिए कौन से एसिड्स और कौन से बेसिस लगे हैं, वेदर इट इज अ वीक एसिड, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और इट इज अ वीक बेस और अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो किसके मिक्सचर से ऑल दीज सॉल्ट्स आर हियर. क्लियर? सो नाउ सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली. अब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल्स जो ये चीज लिखी हुई है वो क्या चीज डिटरमाइन करती है, व्हाट डज इट डिस्क्राइब्स. सो लेट्स सपोज कि अगर हम देख लेते हैं कोई सॉल्ट जिसका नाम सोडियम से स्टार्ट होता है, राइट? तो सोडियम के ऊपर हमें पता है कौन सा चार्ज आता है, सोडियम हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट? सो वी कैन से कि कोई भी सॉल्ट विच हैज सोडियम इन इट्स फॉर्मूला और इन इट्स कंपाउंड, तो वी कैन से कि वो सोडियम सॉल्ट की फैमिली है. वेरी इजी टू डिटरमाइन. सेम एज अगर आपके पास क्लोराइड है कहीं पे भी, Cl नेगेटिव, if your compound has somewhere around Cl negative, so we can say that it belongs to the chloride salt. या क्लोराइड जो क्लोराइड की फैमिली है, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली, उसमें वो बिलोंग करती है. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स की, सो वी कैन से कि पॉजिटिव रेडिकल की बात है तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम आयन, एंड अगर नेगेटिव रेडिकल की बात है तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड आयंस. इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो एक एग्जाम्पल भी बेटा दिया हुआ है तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल NaCl है. सबसे बेसिक एग्जाम्पल बेटा हम जनरली कंपाउंड्स में NaCl लेते हैं सिंस इट इज न्यूट्रल. अब आप समझ सकते हो कि मैं न्यूट्रलिटी में किस बेसिस पे बोल रही हूं आपको, मैं pH वैल्यू की बात कर रही हूं. NaCl is neutral. Yes. Why? Because it is a salt. And आपको पता है NaCl जनरल सॉल्ट हम अपने फूड में भी यूज करते हैं. We have it, we eat it, right? तो NaCl we can say that it is neutral. तो we can take the example of NaCl for now. तो for example NaCl and Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, belong to the family of sodium salts, right? तो जैसे हमने बात की थी, because it also has sodium and this also has sodium, right? These both salts have sodium, so we can say that these belongs to the sodium salts, right? फैमिली समझ में आ गई आपको सोडियम salts की. Similarly NaCl and KCl
अब हमने दोबारा देखो एग्जाम्पल ले लिया है NaCl का, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन ऑफ KCl. बट अगर आपको इसको डिटरमाइन करना है, आपको इसको व्हाट डू वी से, आपको इसको प्लेस करना है किसी फैमिली में, सो वी कैन से दैट NaCl and KCl, these both belong to the family of chloride salts. Why? Because see, NaCl मैंने यहाँ पे लिखा NaCl and KCl, इसमें क्या है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, राइट? सो वी कैन से कि ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली आ गई, राइट? वेयर एज इसमें हमने क्या देखा, यहां पे भी सोडियम था एंड जो ऊपर वाले सॉल्ट थे उसमें भी सोडियम था. सो वी कैन से कि ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली है, राइट? नाउ हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी? सो इट्स वेरी इजी एक्टिविटी, जिसमें आपको जो भी आपको सॉल्ट्स दिए हुए हैं, आपको सिंपल ये डिटरमाइन करना है that whatever salts has been given or it is in front of you, you just have to determine कि किस family या किस salt की family से belong करते हैं, right? So now आंसर देख लेते हैं बेटा. पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूले लिखने को बोला था आपको, सो फॉर्मूले ये रहे. पोटेशियम सल्फेट का क्या है फॉर्मूला, K2SO4. सोडियम सल्फेट Na2SO4. फॉर्मूलेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूलेज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. जो ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स के, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट? एल्स आपका सारा आंसर गलत है. आपके सारे जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, द रिएक्शन इज टोटली रॉन्ग इन दैट केस, ठीक है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया. कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हो गया, राइट? मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया MgSO4. उसके बाद आ जाता है कॉपर सल्फेट, दिस इज CuSO4. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4. यहाँ पे सल्फेट SO4 है, ठीक है? सल्फेट इज SO4. नाउ सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, राइट? तो इस केस में अगर मुझे डिटरमाइन करना हो कि ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये किस फैमिली से हैं, तो आई कैन से कि ये सल्फेट है, सल्फेट सॉल्ट्स. सल्फेट सॉल्ट्स बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फेट कितना ज्यादा आ रहा है, सल्फेट इज एवरीवेयर, सो वी कैन कंसिडर इट बीइंग इन अ सल्फेट सॉल्ट्स, राइट? वेयर एज अगर आपको पता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो ये सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली हो गई. दीज आर द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. क्लियर? ये आपकी क्या हो गई, सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली होगी. वेयर एज अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है आपको बेटा, क्लोराइड, तो यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली है. दीज आर द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है? सो इस तरीके से बेटा देखो कितना आसान है इसको डिटरमाइन करना कि जो आपके नेगेटिव रेडिकल्स हैं, इसमें नेगेटिव रेडिकल्स कौन से हैं, सल्फेट SO4 नेगेटिव. क्या है SO4 नेगेटिव, सबको पता है ना, ये क्या है, नेगेटिव रेडिकल है, ये उसकी सॉल्ट आ गई. सोडियम सॉल्ट्स में बेटा Na पॉजिटिव है, बट यहाँ पे Na आपको पॉजिटिव मिल जाता है, ये पॉजिटिव रेडिकल है सॉल्ट्स में. क्लोराइड आयंस अगेन नेगेटिव है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव रेडिकल का सॉल्ट है. सबको समझ में आ गया ये? दैट इज हाउ यू डिटरमाइन कि कोई आपको अगर सॉल्ट दिया हुआ है, दीज आर ऑल सॉल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं बेटा, रेडिकल की. पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल कौन से हैं, ये वाले हैं. तो इनके अकॉर्डिंग हमने डिटरमाइन करना है कि कौन सी फैमिली फॉल करती है इनमें. नाउ अब आगे देख लो बेटा, एसिड्स एंड बेसिस व्हिच फॉर्म्स दीज सॉल्ट्स. आपको ये भी पूछा हुआ था कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस जो है वो इन सॉल्ट्स को फॉर्म करने में लगता है, राइट? सो अब उसको भी समझ लेते हैं. सो व्हाट आर दे सेइंग इज व्हेन एसिड्स एंड बेसिस मिक्स दे रिएक्ट विगरसली एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट. ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा कि जब एसिड्स और बेस मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो वी कैन से कि एसिड्स एंड बेस का वैसे नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट एसिड्स एंड बेस जो हैं दे विगरसली रिएक्ट, बहुत फास्ट एंड बहुत ही व्हाट डू वी कॉल इट, बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन होता है, विगरस रिएक्शन होता है, दैट इज व्हाट द टर्म वी यूज फॉर देम. सो व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर.
तो हमारा वो रिएक्शन फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ है कि एसिड प्लस बेस फॉर्म्स देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ये देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट की बात मैंने आपको समझाई भी थी, बट मैं एक बार और आपको समझा दूंगी कि हाउ देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट इज फॉर्म प्लस वाटर इज रिलीज्ड। In this reaction, water is released. Acid plus base react respective salt plus water is released here in this case. Example देख लो बेटा. Example में सबसे पहले हमने बात की थी सोडियम, हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? The formula of sodium hydroxide is NaOH, right? उसके बाद हमारे पास जो next हम reactant है वो है नाइट्रिक एसिड. What is the formula of nitric acid? It is HNO3. क्लियर? बट जब कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा, तो कंपाउंड फॉर्म होता है इसके साथ जब रिएक्ट करोगे तो सोडियम नाइट्राइट. सोडियम नाइट्राइट इज NaNO3 प्लस वाटर इज रिलीज्ड. वाटर बाहर आ गया. अब हमने क्या किया था, हम क्या बात कर रहे थे किसकी बेटा? एसिड प्लस बेस. ये बेस हो गया NaOH बेस, HNO3 इज एन एसिड. HNO3 इज एन एसिड. एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट. देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट. ये सोडियम है और ये नाइट्रेट है, तो सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो गया बेटा. क्यों? वाई? बिकॉज देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ Na इन NaOH. बेस में Na की प्रेजेंस थी, इस वजह से उसी का डेरिवेटिव सॉल्ट फॉर्म हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट है, सोडियम का रिस्पेक्टिव सॉल्ट है. सोडियम कहां से आया है? NaOH से आया है. तो ये क्या बन गया बेटा? सोडियम नाइट्राइट बन गया. दिस इज सोडियम नाइट्राइट. सोडियम नाइट्राइट इज फॉर्म्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या? H2O बाहर आ गया. तो हम कह सकते हैं बेटा एसिड्स एंड बेसेस जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट को फॉर्म करने के लिए कौन सा एसिड लगा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड. कौन सा बेस यूज हुआ है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. समझ में आ गया सभी को? अब आगे देख लो बेटा. अब यहां पे एसिड्स कौन कौन से यूज हुए हैं? एसिड्स यूज हुए हैं जो फॉर्म करने में सॉल्ट्स. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जहां से आपको सल्फेट मिल सकता है. क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहां से आपको Cl नेगेटिव मिल सकता है. नाइट्रिक एसिड जहां से आपको नाइट्रेट मिल सकता है NO3. उसके अलावा कार्बोनिक एसिड CO3, आपको कार्बोनेट सॉल्ट मिल सकता है CO3. क्लियर? तो आपको इन एसिड से आपको ये आपको पर्टिकुलर सॉल्ट मिल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स वाले. वेयर एज अगर आप इनके कंपाउंड फॉर्मेशन में बेसिस पूछो तो बेसिस कौन कौन से यूज होते हैं? बेसिस कैन बी यूज्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से आपको सोडियम सॉल्ट मिल सकता है. क्लियर? उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें आपको मैग्नीशियम मिल सकते हैं, मैग्नीशियम के. क्लियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें आपको कैल्शियम के सॉल्ट्स मिल सकते हैं. क्लियर? तो ये बेटा कुछ एसिड्स और बेसिस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं जब आप कंपाउंड बनाते हो. तो इन एसिड्स एंड बेसिस की मदद से क्या आते हैं? देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स आते हैं, जिन रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट वाज आस्क्ड इन दिस एक्टिविटी. क्लियर टिल हियर? अब देखो बेटा फैमिलीज देख लो. फैमिलीज कौन कौन सी हैं? सोडियम सॉल्ट की फैमिली कौन कौन सी है? जब सोडियम सॉल्ट की बात करते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड. किसकी है? सोडियम सॉल्ट की फैमिली. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? सिमिलरली वी कैन ग्रुप अदर सॉल्ट्स एज पोटेशियम सॉल्ट्स. अगर आपको कोई K वाले दिख रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट्स में आ गए. कोई मैग्नीशियम वाले दिख रहे हैं जिसमें आपको मैग्नीशियम के कंपाउंड्स दिख रहे हैं तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हो गए. उसके अलावा अमोनियम सॉल्ट्स जिसमें आपको अमोनिया दिख रहा है तो अमोनियम सॉल्ट्स हो गए. वेयर एज क्लोराइड सॉल्ट्स जहां पे आपको Cl का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है जैसे NaCl, KCl, तो वो क्या हो गए? क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए. सल्फेट सॉल्ट्स जहां पे आपको SO4 नेगेटिव वाले दिख रहे हैं, SO4 दिख रहा है आपको, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी सॉल्ट में आपको SO4 का दिख रहा है तो वो सब सल्फेट सॉल्ट्स में फॉल करते हैं. उसके बाद आता है बेटा नाइट्रेट सॉल्ट्स. तो जो कोई भी अगर आपको नाइट्रेट सॉल्ट्स में दिख रहे हैं कि नाइट्रेट सॉल्ट्स में फॉल कर रहे हैं तो वो उसके ग्रुप में आ गए, नाइट्रेट NO3. क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम फैमिली डिटरमाइन करते हैं. तो दिस वाज एक्टिविटी अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे फैमिली किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्ट्स की किस फैमिली की बात कर रहे हैं. राइट? अब आगे देखते हैं बेटा. अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो है pH ऑफ सॉल्ट्स.
फैमिली ऑफ सॉल्ट्स तो समझ में आ गई, हम कैसे ग्रुप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट, जो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल के अकॉर्डिंग हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा नेगेटिव रेडिकल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कई पर्टिकुलर सॉल्ट्स में सोडियम ही आया जा रहा है, कई पर्टिकुलर सॉल्ट्स में सल्फेट आया जा रहा है, कई पर्टिकुलर सॉल्ट्स में क्लोराइड आयंस आए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको डिटरमाइन करते हैं पर्टिकुलर सॉल्ट्स को, ठीक है, कि वो किस फैमिली में फॉल करेंगे। अब हम उनके पीएच की बात करते हैं कि वो जो सॉल्ट्स हैं जो एसिड्स और बेसिस से फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर एसिड और बेस जो मिला के सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसके बाद जो सॉल्ट आया है एसिड और बेस मिला के, उस पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या पीएच होगा, क्या पीएच होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बेटा वो आपको पता तो लगेगा पीएच पेपर से, ठीक है। पीएच पेपर हम पढ़ चुके हैं बेटा, पीएच पेपर इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। वी ऑल्सो नो दैट द पीएच पेपर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर, ये समझ में आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच पेपर। नाउ अब इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। वो एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.14। 2.14 एक्टिविटी है, तो उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं बेटा एक बार। करना क्या है इसमें, इस एक्टिविटी में कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स। सॉल्ट सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, अगेन द सेम थिंग वी हैव टू डू। एंड इस बार आपको सॉल्ट्स कौन कौन से लेने हैं। फर्स्ट सॉल्ट्स वी आर टेकिंग इज द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिया, फिर आपने लिया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के बाद आपने लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। some other salts available can also be taken. तो for now in this procedure all these salts we have taken, ठीक है। एंड जब भी अगर आप सॉल्ट करते हो तो उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फॉर्मूलाज लर्न करना, ठीक है। सो इफ यू आर लर्निंग एनी ऑफ द सॉल्ट्स और इफ यू कैन सी द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द सॉल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू मस्ट रिमेंबर एंड लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द सॉल्ट्स दैट यू आर लर्निंग, राइट। अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। जितने भी सॉल्ट्स हमने लिए हैं, वट एवर सॉल्ट्स वर टेकन इन द प्रोसीजर, हमने सबसे पहले उनकी सॉल्युबिलिटी देखनी है, हाउ दे आर सॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड जितने भी आपने सैंपल सॉल्यूशंस लिए हैं, सॉरी सैंपल सॉल्ट्स लिए हैं, जितने सैंपल सॉल्ट्स लिए हैं उसको आपने क्या करना है, डिसॉल्व करके देखना है कि वो एक्चुअल में डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं, या कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जो सिर्फ पार्शियली डिसॉल्व हो रहे हैं, या कोई ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, राइट। सो ऑल दिस यू हैव टू चेक। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज check the action of these solutions on litmus and find the pH using the pH paper. सबसे पहले सॉल्ट लिया, उसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया, तो डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करने के बाद इट हैज बिकम नाउ अ सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन बनने के बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक अ pH पेपर एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन द pH ऑफ दो सॉल्यूशंस। क्या करना है, हमने उनका pH डिटरमाइन करना है। So this is the whole activity that we are doing till here, right? Now, अब आगे क्या पूछा है आपसे? Next they are asking, which of the salts are acidic? Since you have mixed all the salts in the solution, आपने उसको solution बना दिया, पानी में mix कर दिया है, तो अब आपको देखना है कि कौन सा salt उसमें acidic आया है, क्योंकि हमने बहुत सारे salts लिए हैं, सबको हमने distilled water में mix किया है। तो अब आपको ये देखना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट आपका बेसिक है, कौन सा सॉल्ट आपका न्यूट्रल है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। एंड उसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है, वंस आपको पता लग गया कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो सॉल्ट का सोल्यूशन क्या है, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, कि उस सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए कौन सा एसिड यूज हुआ है, कौन सा बेस यूज हुआ है। क्लियर, ये आपको बताना है एंड रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। लेट्स सपोज
हमने सॉल्ट लिया है NaCl। NaCl इज अ सॉल्ट, सबसे बेसिक सॉल्ट ले लिया मैंने। अब देखो इसमें मेरे पास pH क्या आ जाएगा बेटा, न्यूट्रल है, तो मेरा pH क्या होना चाहिए, द pH वैल्यू शुड बी 7 सिंस इट इज अ न्यूट्रल, एंड हमारा न्यूट्रल pH क्या आता है बेटा, 7 आता है। क्लियर। अब अगर मुझे NaCl बनाना है, तो मेरे पास एसिड कौन सा यूज होना चाहिए, आई विल यूज द एसिड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यूज करूंगी मैं। एक एसिड मैंने ये ले लिया। अब अगर मुझे बेस चाहिए तो बेस आई विल यूज NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बेटा आई बिलीव हमने इसका रिएक्शन भी किया हुआ है। इसका रिएक्शन कैसा था, मैं यहां ऊपर आपको लिख के दिखा देती हूं। HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म करता है बेटा, इट फॉर्म्स NaCl विच इज अ सॉल्ट प्लस वाटर इज रिलीज्ड। सबको याद है, सभी को याद है ये। तो NaCl कहां से आया है बेटा, एसिड से HCl और बेस NaOH से आया है। तो ये आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद बेटा जो ये सॉल्ट आपने देखो मिक्स किया, तो मिक्स करके इसको पानी में मिलाया, तो सिंस NaCl इज न्यूट्रल तो उसकी pH वैल्यू 7 आ गई, वेयर एज अगर आप कोई और सॉल्ट लेते हो, उसको आप डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करते हो एंड उसका आप pH वैल्यू देखते हो, तो इट कैन डिफर, इट कैन बी एसिडिक ऑल्सो, इट कैन बी बेसिक ऑल्सो। बट इस केस में क्या आ गई pH वैल्यू, आपकी pH वैल्यू यहां पे न्यूट्रल आ गई है। क्लियर। अब सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं कि वो कैसे आप डिटरमाइन करते हो कि जो आप सॉल्ट ले रहे हो उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में हम मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी, क्या फैक्टर्स हैं, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बेटा सभी सॉल्ट एक जैसे डिसॉल्व तो नहीं होंगे एंड सभी की वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी, राइट। सो सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। ऑल सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक बेसिस लाइक NaCl, NaOH etc. are readily soluble in water. फर्स्ट थिंग, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इसमें आपको कोई दो राहें नहीं है, दिस यू हैव टू रिमेंबर ओनली, कि जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, जैसे HCl और NaOH, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस हैं। तो ये बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, दे गेट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल, आपको दिख जाएंगे कि ये प्रॉपरली मिक्स हो चुके हैं पानी में, राइट। लेकिन सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेसिस आर मोस्टली soluble in water but some may be insoluble। बट जितने ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस, अच्छा इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड्स की हम क्या बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में आपको देखो बेटा, इनऑर्गेनिक की जहां बात आ जाती है, इनऑर्गेनिक में आपको कार्बन नहीं दिखता, यू डोंट सी कार्बन डेरिवेटिव, कार्बन का आपको कोई भी नामो निशान नहीं नजर आता। वेयर एज अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हो बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको कार्बन नजर आएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, ये मैंने आपको बहुत इजीएस्ट तरीका बताया है टू डिटरमाइन कि कौन सा एसिड अगर आपको नजर आ रहा है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक है। अब जैसे अगर आप ये देख लो, ये सॉल्यूशन देख लो बेटा, ये वाला, तो इसमें आपको कार्बन नहीं दिख रहा, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, यहां पे भी आपको सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। वेयर एज अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, राइट, तो उसमें आपको कार्बन मिलेगा, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब हाँ, तो इस केस में इनऑर्गेनिक तो सॉल्युबल हो गया, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेसिस की बात कर रहे हो बेटा, तो वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली, कंप्लीटली नहीं होते हैं। जैसे यहां पे आपने एक टर्म देख लिया ना, रेडिली सॉल्युबल, बट वो सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेसिस के लिए है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक बेसिस की, तो वो मोस्टली सॉल्युबल है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, एंड उनमें से कई इनसॉल्युबल है, उसमें से भी कई इनसॉल्युबल है। क्लियर। सो हियर ओनली organic salt
sodium acetate is asked which is highly soluble in water. But लेकिन अगर आप बेटा बात कर रहे हो ऑर्गेनिक सॉल्ट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट में बेटा सोडियम एसीटेट है, ठीक है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। कैन यू सी कार्बन हियर? सबको कार्बन दिख रहा है इसमें? तो ये क्या है बेटा? ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है। लेकिन क्योंकि ये आपको आपके प्रोसीजर में इस एक्टिविटी में गिवन है, आपको इसके बारे में पूछा गया है, तो बेटा ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक्सेप्शन समझ लो, राइट। दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर विच इज सोडियम एसीटेट। क्लियर? सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक बेसिस सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, बट सारे सॉल्युबल नहीं होते। और उसमें अगर आप एक्सेप्शन की बात करो तो सोडियम एसीटेट जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है। समझ में आ गया सभी को? अब एक्सप्लेनेशन समझ लो बेटा कि सॉल्युबिलिटी किस वजह से होती है, क्यों आपको ऐसे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, तो उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सो सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स आर पोलर इन नेचर। पोलर होते हैं नेचर में, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दे आर पोलर इन नेचर एंड पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड्स पोलर होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। एंड सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस आर मेनली नॉन पोलर इन नेचर, एंड उसका ऑपोजिट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस हो जाते हैं। अगर इनऑर्गेनिक एसिड्स पोलर हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस क्या हो जाते हैं? दे बिकम नॉन पोलर। क्लियर? वो नॉन पोलर हो गए इन नेचर, सो दे डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सोल्यूशन लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, which is obviously not water। ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस में जाके मिक्स होंगे। ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। कौन कौन से? बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है। कहीं भी आपको वाटर नहीं नजर आ रहा है ना। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड्स नॉन पोलर हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वाटर पोलर निकला और ये ऑर्गेनिक एसिड्स नॉन पोलर निकले। समझ में आ गया सभी को? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि सॉल्युबिलिटी क्यों वेरी करती है, व्हाई डज इट वेरीज। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच देख लो अब सॉल्यूशन का क्या है, क्योंकि हमारे पास ये भी पूछा है ना हमसे। एक तो आपको सॉल्युबिलिटी पूछी थी, सॉल्युबिलिटी हमने समझ ली, पोलर नॉन पोलर वाली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाली। अब हमसे ये भी तो पूछा था कि उनका पीएच क्या है सॉल्यूशन का, जो आपका पीएच आया, राइट। तो वो भी समझ लेते हैं। सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन विद वाटर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा हमने क्या देखा था, क्या देखा है हमने? सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद क्या फॉर्म होता है? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कौन सा होता है? NaCl। और क्या रिलीज होता है? वाटर। तो इसमें हम न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोल रहे हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को न्यूट्रल सॉल्ट बोल रहे हैं। एंड वो किस वजह से फॉर्म हुआ है? बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आर वी क्लियर टिल हियर? नाउ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब ये तो डिफरेंट आ गया कुछ। अभी तक तो हम सब कुछ स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे थे, अब यहां पे एक चीज स्ट्रॉन्ग आ गई, दूसरी चीज वीक आ गई। सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। पीएच समझो, ऐसे आपको पीएच डिटरमाइन करोगे। अगर किसी एक सॉल्ट के फॉर्मेशन में, किसी एक सॉल्ट के फॉर्मेशन में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, और वीक एसिड है, तो वो सॉल्यूशन बेटा क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस है। तो अगर आप पीएच देखोगे तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा। इसका एग्जांपल आपके पास है कौन सा? सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड एसिटिक एसिड। इट विल टर्न द पीएच पेपर इनटू रेड और येलो। देखो समझो इस बात को कि यहां पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिड कौन सा आ गया हमारे पास? वीक, CH3COOH वीक एसिड आ गया।
एंड यहां पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, CH3 COONA, ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्म होने के बाद आपका क्या बाहर जाएगा बेटा, H2O बाहर चला जाएगा, पानी तो बाहर जाता ही जाता है। ठीक है, H2O बाहर चला गया। अब ये बात समझो बेटा, यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है सोडियम एसीटेट, ये क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन देगा आपको बेस, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीएच सॉल्यूशन का देखते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। कई बार ऐसा भी केस आ जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड आ जाता है, तो वहां तो आपका पीएच गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर आपके पीएच में डिफरेंस आएगा ही आएगा। क्लियर? अब आगे देखो, आगे क्या है, सॉल्ट्स ऑफ अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। उसी का उल्टा हो गया, यहां पे अब बेस वीक हो गया लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो सॉल्यूशन किसकी तरफ चला जाएगा बेटा, एसिडिक की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब क्यों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, NH3OH ट्वाइस जो क्या है बेटा, NH3OH वो क्या है, वीक बेस है कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट्स सॉल्ट्स फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन विद वाटर। तो इनका जो आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एसिडिक आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे HCl स्ट्रॉन्ग है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग होएगा पीएच की वैल्यू उसकी तरफ चली जाएगी, वीक वाले की तरफ क्यों जाएगी, है ना। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास सॉल्ट क्या बन रहा था, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा था। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? ऑल राइट। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड। सो एक्सप्लेनेशन इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बात हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? यस, it will always depend on the presence of hydrogen ion and hydroxide ions in pure water. They remain at equilibrium with 10⁻⁻7 each. कि 7 की वैल्यू मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। अगर तो प्रेजेंस है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की इन इक्वल अमाउंट्स, तो बेटा वो क्या दे रहे हैं हमें, वो इक्विलिब्रियम दे रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ कम ज्यादा नहीं है ना। हम ये नहीं बोल सकते ना कि H पॉजिटिव बहुत है ज्यादा और OH नेगेटिव कम है, या OH बहुत ज्यादा है H पॉजिटिव कम है। दोनों का अमाउंट इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे है। दैट इज व्हाई दे आर गिविंग अस द न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग अस द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख लो, सबसे आसान बात, ये H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O क्या है, ये वाटर है। वाटर सबसे न्यूट्रल की बात करें ना बेटा हम, तो उसमें H पॉजिटिव जितना है उतना ही OH नेगेटिव है। अगर आप H2O डिसोसिएट करते हो, उसको अलग अलग कर देते हो, तो अपने आयनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आर वी क्लियर? तो इस हिसाब से अब वाटर क्या है, ड्रिंकेबल है, आप पानी पी सकते हो। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ना तो इसमें H पॉजिटिव ज्यादा है ना OH नेगेटिव ज्यादा है। तो दैट इज हाउ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। लेकिन अगर इनमें से कोई एक वीक हो जाता तो वो स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाएगा ना। अगर वीक बेस हो गया तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? नाउ अब देख लो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सेम चीज। व्हेन वी ऐड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन फुल्ली एंड इक्विलिब्रियम रिमेन्स द सेम, राइट। लेट्स सपोज आपने एक न्यूट्रल सॉल्ट लिया है NaCl, आपने जैसे ही NaCl को वाटर में डाला, पानी में डाला, तो बेटा पानी में जाने के बाद इसकी डिसोसिएशन हो गई। डिसोसिएशन का मतलब क्या, NaCl अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इक्विलिब्रियम आ गया क्योंकि सेम अमाउंट है सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है, फुल्ली डिसोसिएट हो गए। लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम क्या है, सेम ही रहेगा। बट अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसिटेट, क्या आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH एंड वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, डज नॉट डिसोसिएट फुली
and disturb the equilibrium of water. अब इनमें से कुछ एक, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रहा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि कई केसेस में जितना एसिड फॉर्म होना चाहिए था, जितना H पॉजिटिव आयन फॉर्म होना चाहिए था, उतना तो हो ही नहीं रहा, या कई केसेस में जितना OH नेगेटिव आयन फॉर्म होना चाहिए था बेस के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए, उतना तो हो ही नहीं रहा। तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, राइट? इक्विलिब्रियम तभी आएगा ना बेटा जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड डिसोसिएशन जब कंप्लीट हो रही हो, आयंस कंप्लीट फॉर्म हो रहे हो इक्वल अमाउंट में। बट यहां तो इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो ही नहीं रहे, जहां एक वीक हुआ वहां इक्विलिब्रियम खराब हो गया। समझ में आया? सो इन द फॉर्मर केस द सॉल्यूशन हैव मोर H पॉजिटिव आयंस while the later has more OH नेगेटिव। यहां पे जहां पे आपके फॉर्मर केस कौन सा था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन सा था, HCl। तो HCl में तो बेटा हमेशा H पॉजिटिव आयन तो ज्यादा होगा ही होगा यहाँ पे। तो एक तो इसने इक्विलिब्रियम खराब कर दिया, दूसरे में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था NaOH, तो यहाँ पे मोर OH नेगेटिव आयंस आ गए, मोर OH नेगेटिव आयंस आ गए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे खराब हो गया। तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऑल राइट, सो यस, आई होप आपको समझ में आया हो जो भी हमने किया है अभी तक। एसिड्स हमने pH समझा कि pH क्यों डिफरेंट आता है, कि अगर उसमें से एक भी स्ट्रॉन्ग या वीक आ जाए तो आपका pH खराब होगा ही होगा, या डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो बेसिक की तरफ चला जाएगा या एसिडिक की तरफ चला जाएगा। वेयर एज अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन आ जाता है। फिर हमने फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में उससे पहले पढ़ा था। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को आप कैसे कैटेगराइज करते हो, कैसे डिटरमाइन करते हो कि आपने किस सॉल्ट को किस फैमिली में आपने प्लेस करना है, राइट? सो आई होप दीज टू टॉपिक्स वर इजी फॉर यू एंड यू क्वाइट अंडरस्टूड। बाकी आपके जो रिमेनिंग हैं, uses of baking soda, washing soda, all these things we are going to cover in the next lecture. Till then, keep studying, keep spreading the knowledge, and I'll see you in the next lecture. Thank you.